लाइक जिस तरह हमारी अभी शक्ल है, वो ये सोचते थे कि जो स्पर्म है वो हमारी उसी शक्ल में होता है। इसकी जब ठीक है उनके सामने इस चीज को पेश किया गया था, तो उसने एक प्लास्टर ऑफ पेरिस प्लास्टर सील उसने चबा के ऑडियंस को दिखाया था कि ये स्वाइन की शक्ल है जो कि माइक्रोस्कोप में नजर आती है। आप देख सकते हैं आप किस डे के ऊपर लीच लाइक लग है। द फर्स्ट नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। My respected teacher, all the colleague fellows, seniors, juniors, I welcome you here with the Islamic greeting. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. May peace, blessing and mercy of Allah subhanahu wa ta'ala on all of you. Today we are going to talk about Islam and science. This is one of the premium project series from our legacy. The other two projects from these series are Let's Explore Quran and 360 Sunnah project. The purpose of this project is mentioned in front of you. I can't explain all these things in the short time. There are three major things I want to explain: the scientific argument, the study booster plan, and the last one is the preparation for Agra or the Islamic elements. Only the last point here, the preparation of Agra, I want to explain here. कि इंशाल्लाह अज़ीज़ ये प्रोजेक्ट लेने वाला, देने वाला, प्रोजेक्ट सुनने वाला और इसको आगे डिलीवर करने वाला। लास्ट टाइम जब आखिरत का टाइम आएगा, जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनसे क्वेश्चन करेंगे कि जो इल्म हमें दिया गया, हमने उस इल्म के साथ क्या किया, तो वो इस काबिल होगा कि बता सके कि हमने ये प्रोजेक्ट किया, इसको हमने आगे डिलीवर किया, इसको किस तरह से हमने रिलेट किया। तो इंशाल्लाह अज़ीज़ ये उसके लिए हमारे लिए एक ज़रिया निजात बन सकता है। The content of this project is also in front of you. We have different subjects here: physics, biochemistry, you can see anatomy and zoology, botany, different subjects we have covered. But today's important topic is medicine, and again in medicine we have three major branches: pharmacology, genetics, which has the forensic intervention, and embryology. आज इंशाल्लाह अज़ीज़ हम embryology के ऊपर ही सारी डिस्कशन करेंगे। embryology again हमने two parts में डिवाइड की है। The first part इंशाल्लाह आज हम इसको कवर कर लेंगे। The next part वो next time किसी सेशन में हम कवर करेंगे due to the time shortage. The first thing as a disclaimer I want to mention here that जिस तरह अभी आपको बता देंगे, the glorious Quran is the book of science. It's not a book of science. Actually, we have two dead ends. The first dead end around the circle of Islam is more rigid end, which you can say is fundamentalism or terrorism or extremism. We have to clarify this end, as well as we have different end, which is liberalism, atheism, deism, agonism. This is another end. We have to deal these both challenges at the same time. तो इसलिए हमें इन चीजों को पहले क्लियर करना है कि अगर हम कुरान पाक के साथ किसी चीज को रिलेट कर रहे हैं तो नाउज़ बिल्लाह उसकी कोई तौहीन नहीं कर रहे, बल्कि हमारा मकसद क्या है। The glorious Quran is the miracle of miracles. क्यों कहा जाता है? Can you imagine कि जब ये नाजिल हुआ था at a time of 7th century, at a time of Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, it was the time of literature, the most eloquent nation in the world, Arab nation. They are proud of their language. जब उनके सामने ये कलाम नाजिल हुआ, उनके सामने पढ़ा गया, they were shocked, they were amazed कि ये कलाम कोई man made नहीं हो सकता, बल्कि ये divine revelation है, यानी एक ऊपर से कलाम आया है और जिसका हम मुकाबला नहीं कर सकते। Then the era came, which is philosophical era, और you can say the medieval era, जिसको इस्लाम में golden age भी बोलते हैं। इस दौर में जो सबसे important high topics थे, that was the philosophy or theology. These are actually the branches of the theological region, जिसमें scientific जो branch थी वो भी start हो गई थी
पेनिट्रेट करना। तो इस दौर में भी अल्हम्दुलिल्लाह जो कुरानिक आर्गुमेंट्स थे, फिलोसफिकल अप्रोच थी कुरान पाक की, वो सबसे ऊपर थी। और उस दौर में भी इंशाल्लाह हमारे मेन स्ट्रीम साइंटिस्ट हम इधर मेंशन करेंगे, दैट वाज द ग्रेटेस्ट स्कॉलर, ग्रेटेस्ट फिलोसोफर ऑफ दैट टाइम, जिनको ये क्रेडिट मिला था। द नेक्स्ट एरा केम आफ्टर द एनलाइटनमेंट पीरियड, जिसको इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी बोलते हैं। इस फेज में जो साइंस थी उसने एक्चुअल में प्रोग्रेस करना शुरू कर दी थी। नाउ वी आर लिविंग इन दैट एरा, द साइंटिफिक एरा। वी हैव टू जस्टिफाई ईच एंड एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू द contemporary needs। वो क्या है? वो एक्चुअल में साइंटिफिक है। फॉर एग्जांपल, इफ यू केम टू द क्रिश्चियन, व्हाट यू हैव टू से, आप उसको अगर कुरान पाक से कोई आयत पढ़ के बताते हो, यू से आई बिलीव इन इट, यू मस्ट बिलीव इन इट, ही विल नॉट justify your answer, he will not accept it unless you have to give the premise from his own Bible or bibliological origin, तब आप उसको convince कर सकते हैं। Exactly the same way जो इस वक्त सबसे ज्यादा आइडियोलॉजी पेनिट्रेट कर रही है वो है एथिज्म या डिफरेंट इज्म ऑब्जेक्टिव्स, जिनके लिए साइंस जो है वो एक मेरिट ऑफ प्रूफ है। तो हमें इस चीज को मानना है कि जो more than 1000 आयात हैं साइंस के अंदर that are scientific, we have to explore it. That's why we say Quran is the miracle of miracles। ये हर दौर में मुकम्मल रहनुमाई देता है, हर दौर में हमें कामयाब कर देता है। तो इसलिए इसको बुक ऑफ साइंस कहा जाता है, आयात की किताब है। The next one, the next hand is the challenge of Quran। It is a very hard challenge for us, for everyone। ये वाला जो चैलेंज है, ये इसकी डायमेंशंस बहुत ज्यादा हैं और इसको समझना बड़ा जरूरी है, क्योंकि जब एट द टाइम ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तब भी ये चैलेंज था। द फर्स्ट चैलेंज इज कि अगर तुम्हें हिम्मत है तो इसके मिस्र एक सूरत बना के ले आओ। यानी इसके साथ ही आगे मेंशन कर देते थे, एक सूरत नहीं तो 10 आयत बना के ले आओ। उससे आगे इसको और ईज कर दिया, एक आयत भी बना लो तो वो भी कर दिया। तो ये चैलेंज शुरू से लेकर अब तक है। इसको काफी लोगों ने एक्सेप्ट भी किया है, इट्स स्ट्रेंज थिंग, लेकिन इसकी जो डायमेंशन है वो कोई समझ नहीं पाया, ना ही उसको कोई फुलफिल कर पाया। तो कोई आयत इसके मिसल कोई बना नहीं सकता, ना बना के लाया। तो इसको कुरान पाक में सूरह बकरा में ऐसे मेंशन है। नेक्स्ट स्लाइड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इन कुंतुम फी रैबिन मिम्मा नज़लना अला अब्दिना, अगर तुम्हें शक है जो कि हमने अपने बंदे पे नाजिल किया, फातु बिसूरतिन मिस्लिही, तो इसकी मिस्ल एक सूरह ले आओ। वअदु शुहदाअकुम, इन और बुला लो गवाहान को, शहीद की जमा है गवाहान को, मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के सिवा, इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो। फिर अल्लाह ताला ने इसका कंक्लूजन भी आगे बता दिया, फाइल लम तफअलु वलन तफअलु, और तुम हरगिज नहीं कर सकते, और तुम फिर आगे भी बता दिया, तो फतकुन नार अल्लती, उस आग से डरो, वकूदुहन नास, जिसका ईंधन क्या है? नास यानी लोग, वल हिजारा, और पत्थर, और वल हिजार उद्दत लिल काफिरीन, जो तैयार की गई है काफिरों के लिए। साथ ही कंक्लूजन भी बता दिया कि आप नहीं कर सकते, और फिर उसका इसकी पनिशमेंट की सेवेरिटी भी बता दी। इसकी सेवेरिटी से इसकी चैलेंज की जो है हार्डनेस पता चल जाती है कि ये कितना स्ट्रिक्ट चैलेंज है हमारे लिए, तो वो उसके लिए तैयार है। Next slide. This is the translation of that verse. So we will cover the whole subject into the 4 subjects. First, we will give the introduction. Next, the importance. Then Quranic interpretation. Last one will be the Muslim contributions. Introduction में just उसकी definitions वगैरह हम बताएंगे. The first, again disclaimer here is कि जितने भी references आपको बताए जाएंगे, the major source is our from mentor Dr. Zakir Naik. Then जो बाकी रेफरेंसेस हैं फुटनोट पे यहाँ को डायरेक्ट रिसर्च दिखा दी जाएगी। सो यू कैन टेक द स्नैप्स और उसको आप अगर क्रॉस चेक करना चाहते हैं तो आप जाके डायरेक्ट रेफरेंसेस देख भी सकते हैं। सो सबसे पहले इस्लाम एंड मेडिसिन, एज आई हैव एक्सप्लेन्ड, इसको हमने आगे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। तो आज का जो मेजर पार्ट है एम्ब्रियोलॉजी, वो हम कवर करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड। मेडिसिन सिंपल है, इसकी डेफिनेशन है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। दिस इज एम्ब्रियोलॉजी, और ये आप लोगों का अपना सब्जेक्ट है माशाल्लाह, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, आप सबको पता होगा व्हाट इज एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियन वर्ड जो है ये ग्रीक वर्ड है, और लॉजी जो है ये भी ग्रीक वर्ड है, द स्टडी
of the unborn, और इसके अंदर fertilization, development of fetus and जो उनकी प्रोसेसेस हैं, प्रीनेटल डेवलपमेंट, वो सारी की सारी इसमें कवर हो जाती है। और ये डेफिनेशन एग्जैक्ट लिखी हुई है जिस वेबसाइट से, वो फुटनोट पे आपको मिल भी जाएगा। So we will cover the four main things, the four parts, and the embryological ages. The second one, man is created from alaq. The third one will be the man created from the drop, जो कि ribs और vertebra के दरमियान से निकलता है। इसके बाद लास्ट में हम कवर करेंगे fetus protected by three veils of darkness. The second part है इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन जब हमारा होगा तो उसमें हम कवर करेंगे। नेक्स्ट, the first one is the embryological ages. Embryonic ages stages क्या है? First we have to clear what are the established facts. We can't give our premise on the theories or hypotheses. हमें established facts पे जाना है, उसके ऊपर हम बात कर सकते हैं। तो जो facts हैं जो अभी पूरी दुनिया में माने जाते हैं वो ये हैं कि सबसे पहली बात कि जो डिस्कवरी थी 1677 में वो हुई थी फर्स्ट टाइम स्पर्म सेल्स को देखा गया था माइक्रोस्कोप में। The two scientists हैं 11 जिन्होंने सबसे पहले इसको ऑब्जर्व किया। बट व्हाट वाज द मेन थिंग हियर कि उन्होंने जब ऑब्जर्व किया तो उन्होंने जो प्रीमिस बनाया जो उनका क्लोज था, दैट इज द प्री मैच्योरिज्म और प्री फॉर्मेशनिज्म भी इसको बोलते हैं, परफोरेशन थ्योरी भी बोलते हैं, इन व्हिच दे सेड कि जो एम्ब्रियो ह्यूमंस हैं जो स्पर्म्स हैं दे आर द मिनिएचर्स ऑफ द ह्यूमन, लाइक जिस तरह हमारी अभी शक्ल है। तो वो ये सोचते थे कि जो स्पर्म है वो हमारी उसी शक्ल में होता है, इसकी बाद में डेवलपमेंट होती है वो स्पर्म की वही शक्ल होती है। तो इसके बाद ये थ्योरी जो थी बाद में रिजेक्ट हुई थी और न्यू थ्योरी आई थी जो अभी हम पढ़ते हैं, दैट इज द बाइपेरेंटल इनहेरिटेंस थ्योरी दैट वाज एक्सेप्टेड इन द 18th century। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि ये जो चीजें अभी आपके सामने आई हैं और आप अभी पढ़ रहे हैं, इट कांट बी अ शॉकिंग फैक्ट्स फॉर यू, बट एट द टाइम ऑफ द 7th century जस्ट इमेजिन in the Arabian desert, उस टाइम अगर आपको ये कोई चीज बता दे विदाउट द माइक्रोस्कोप, विदाउट द एड ऑफ द लेंस, आपको सारी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सीक्वेंस बता दे, दैट इज द मिरेकल। इसको मिरेकल बोलते हैं कि विदाउट इट दैट इज द अनसीन। तो इंशाल्लाह आगे हम इसको पढ़ेंगे। द सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज द सोमाइट फॉर्मेशन जो कि पैराक्सियल मेसोडर्म से बनता है और उसके आगे डेरिवेटिव्स होते हैं, वो भी इंशाल्लाह हम देखेंगे। द थ्री डेरिवेटिव्स ऑफ सोमाइट्स, जिससे आगे फिर नेक्स्ट डेवलपमेंट होती है जिसमें डर्माटोम्स हैं, स्क्लेरोटोम्स हैं और मायोटोम्स हैं, बोन्स वगैरह, मसल्स वगैरह और वर्टिब्रल कैनाल इसी से फिर आगे फॉर्म होती है। व्हाट इज द थिंग आई वांट टू से, सोमाइट की जो फॉर्मेशन है दैट इज जिसके लिए कुरान पाक में वर्ड यूज हुआ है द लंप शेप, द च्यूइंग लंप के नाम से है। और जब कीट हैमूर के सामने इस चीज को पेश किया गया था तो उसने एक प्लास्टर ऑफ पेरिस प्लास्टर सील थी उसके पास, उसने चबा के ऑडियंस को दिखाया था कि ये सोमाइट की शक्ल है जो कि माइक्रोस्कोप में नजर आती है। द एग्जैक्ट डेफिनेशन जो कुरान पाक में दी गई है और वो इंशाल्लाह हम देखेंगे सेम उसी रेफरेंस में, उसी कॉन्टेक्स्ट में आपको मिल जाएगी। सो यू कैन सी द रिसर्च हियर, जिसमें आप देख सकते हैं कि जो भी मैंने बताया जो प्री फॉर्मेशनिज्म क्या है और आप लोग खुद भी जाके चेक कर सकते हैं सारी चीज। नेक्स्ट, दिस इज फ्रॉम योर बुक, इसमें आप सोमाइट फॉर्मेशन दे सकते हैं। नेक्स्ट करें, अभी ये लेबल होती है थोड़ा छोटा है लेकिन आप अपनी बुक से इसको जाके चेक कर सकते हैं। ये सारी स्टेजेस हैं एट द स्टेज ऑफ 20 आफ्टर द 20th डे टू टिल द 30th डे, जिसके बाद जो है प्राइमोर्डियम ऑफ हार्ट बनता है, फोल्डिंग ऑफ एम्ब्रियो होती है। इससे पहले जो है जो सोमाइट फॉर्मेशन है उसका जिक्र काफी ज्यादा कुरान पाक में आया है एम्ब्रियोलॉजिकल एजेस। नेक्स्ट, so next so this is the translation because of a shortage of time मैं ट्रैक इस पे जंप करूंगा। इसमें आप जो है डेफिनेशन सारे फैक्ट्स जो है वो देख सकते हैं। इसको किस तरह से हमने देखना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। When we did create from a crescent of clay, essence of clay से हमें बनाया। Then we placed him
as a drop of the sperm in a place of rest. प्लेस ऑफ रेस्ट यानी वो जगह जिसको यूट्रस कहा जाते हैं, इसको इंशाल्लाह आगे क्लियर करेंगे कि इसको प्लेस ऑफ रेस्ट क्यों कहा जाता है। इस ये प्रोटेक्टेड होती है एम्ब्रियोनिक, चूंकि एम्ब्रियो है उसके बाद उसकी अपनी एम्ब्रियोनिक सैक होता है, उसका जो एब्डोमिनल कैविटी है मदर की, उस सबसे ज्यादा प्रोटेक्टिव जगह वही बनती है, तो उसके लिए ये वर्ड यूज हुआ है, फर्मली फिक्स्ड एंड देन वी मेड द स्पर्म इनटू ए क्लॉट ऑफ कंजील्ड ब्लड। इसके लिए आला का वर्ड यूज हुआ है कुरान पाक में। कंजील आला का के 3 मीनिंग्स हैं टोटल, वो आगे भी जाके हम देख लेते हैं। फर्स्ट इधर जो मेंशन किया गया इंटरनेशनल ट्रांसलेशन में कंजील्ड ब्लड है। द सेकंड वन इज about the clinging substance जो क्लिंग कर देता है, और थर्ड वन इज a leech like substance जो आगे देखेंगे। congealed blood इसलिए बोलते हैं क्योंकि at 20 days जो थर्ड फोर्थ वीक के बाद जो ऑब्सोलीट आर्टरीज होती है, क्लोज आर्टरीज, डेड एंड आर्टरीज होती है, उसमें क्लॉटिंग होना शुरू हो जाती है ब्लड की, तो एज ए होल जो एम्ब्रियो नजर आता है हमें वो क्लॉट या क्लॉटेड क्लॉट के तौर पे नजर आ रहा है। व्हाई वी से a clinging substance जो सेकंड डेफिनेशन है, वो इस वजह से क्योंकि ये एंडोमेट्रियम के साथ इसकी इम्प्लांटेशन हुई होती है यूट्रस के एंडोमेट्रियम के साथ। द थर्ड वन इज द लीच लाइक सब्सटेंस। क्यों कहा जाता है लीच लाइक सब्सटेंस? दो रीजंस हैं, बिकॉज़ इट सक्स ब्लड फ्रॉम द मदर। जो लीच की कैरेक्टरिस्टिक है, एक्चुअली सक नहीं करता क्योंकि जो प्लेसेंटा से आर्टरीज आ रही होती है, वेटरलाइन आर्टरीज हैं, प्लेसेंटल आर्टरीज हैं, वो ब्लड सप्लाई कर रही होती हैं फीटस को, तो ये आर्टरीज एक्चुअली ऐसे ही शो कर रहे होते हैं, ऐसे लग रहा होता है जैसे मदर से ये ब्लड सक कर रहे हैं, इस वजह से इसको लीच लाइक सब्सटेंस कहा जाता है। और अगेन ये क्लीन कर जाता है क्योंकि अटैच होता है एंडोमेट्रियम के साथ, इस वजह से भी लीच लाइक सब्सटेंस कहा जाता है। then of that clot we made lump, this is the मुकर्रर, और इसका मतलब ये था कि जो सोमाइट्स हैं उसकी फॉर्मेशन यहाँ पे बताई गई है। और ये लम्प जो है, इसके अगर हम तफसील में जाएं मजीद इसकी जो ट्रांसलेशन देखें तो वो जो च्यूइंग सब्सटेंस जो अभी मैंने बताया उसकी डेफिनेशन में ये आता है। देन we made out of lump bones and cloth that bones with flesh। then bones कहाँ से बन रही थी? जिस तरह की सोमाइट्स की डेरिवेटिव्स हैं स्केलेटन, उससे वर्टिब्रा, रिब्स और रिब केज वगैरह जो बोन्स फॉर्मेशन है वहां से। देन आप देख सकते हैं बोन के बाद उसमें फ्लैश आ गया जो मायोटोम है, मायोटोम के बाद डर्माटोम भी है, तो जो उसके ऊपर डर्माटोम एक्चुअली स्किन और सुपरफिशियल की डेरिवेटिव्स होते हैं आगे जाकर, और लास्ट में जो मायोटोम था वो बाकी जो मसल्स की डेरिवेशंस करते हैं, ड्राइव होते हैं इससे मसल्स, वो आ रहे हैं। देन वी हैव डेवलप्ड आउट ऑफ इट अनदर क्रिएचर, स्टेज बाय स्टेज इसको फिर आगे इसकी जो है मॉडिफिकेशन होती गई, प्रोलिफरेशन होती गई, और वो फिर एक इंसान की शक्ल उसने इख्तियार कर ली। दिस इज द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो कि मैन बन जाता है उसके बाद। सो ब्लेस्ड बी अल्लाह द बेस्ट टू क्रिएट, ये अल्लाह ताला जो है मुबारक है और बेस्ट ऑफ द क्रिएटर है, अहसनुल खालिकीन। The second one is man is created from अलग leech like substance, इसको मैं पहले क्लियर कर चुका हूँ, लेकिन इसके अंदर जो हमने कुरान पाक की रेफरेंस ली है, फर्स्ट आयत जो आप सबको आई थिंक पता होनी चाहिए और बड़ा जरूरी भी है, वो वहां से हमने ली है। तो leech like क्यों कहा जाता है अभी मैंने क्लियर कर दी है, because of the suction from the suction of blood जो कि leech की कैरेक्टरिस्टिक है, और second one is the clinging substance क्योंकि ये एंडोमेट्रियम के साथ इम्प्लांट होता है, इस वजह से इसको इस तरह बोलते हैं। तो इसकी आप डायग्राम भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है, these are the facts I have explained, these are the pictures, इसको आप नोट कर लें जैसे मर्जी। आप देख सकते हैं एम्ब्रियो किस डे के ऊपर लीच लाइक लग रहा है। द फर्स्ट पिक्चर इज जो ए पिक्चर है एम्ब्रियो 24 और 25 डे के ऊपर है, और इसके नीचे वाला जो लीच की पिक्चर बनाई है, इसके साथ जो पिक्चर्स आप देख सकते हो एक्स डे के ऊपर है फर्स्ट एम्ब्रियोस की जिसमें सोमाइट्स की नजर आ रहे हैं, इसके बाद जो पिक्चर है वो मेडिसिनल लीच की पिक्चर है। यू कैन से द रिसेम्बलेंस, यहाँ पे देखिए आपको पता चल जाएगा कि कितनी ज्यादा रिसेम्बलेंस है, क्यों इसको लीच लाइक सब्सटेंस बोला जाता है। नेक्स्ट, इसको बाद में कीथ एंड मूर ने एक्चुअली कंफर्म किया था। बेसिकली कीथ एंड मूर ने कैसे किया था, some boys from the some students from the Arab जो उनके पास ये थे 80 क्वेश्चंस लेकर,
80 क्वेश्चंस फ्रॉम द एम्ब्रियो। तब उन्होंने द ह्यूमन जो आप डेवलपिंग ह्यूमन आप जो बुक पढ़ते हैं केएलएम की फर्स्ट ईयर में सेकंड ईयर में, ये नहीं लिखी थी अभी। तो उन्होंने उससे पहले चले गए थे और उनसे ये 80 क्वेश्चंस पूछे थे। उनमें से ये भी एक क्वेश्चन था कि ये लीच लाइक लुक आ जाता है, और भी कुछ क्वेश्चंस थे। तो उन्होंने इन 80 क्वेश्चंस को आंसर किया था। देन उनकी जो स्टेटमेंट थी वो इंशाल्लाह लास्ट में हम दिखा देते हैं आपको। एक और भी है लीक सिम्पसन, डॉक्टर लीक सिम्पसन ने भी इसको जस्टिफाई किया था। आप इनकी जाके नेट से देख सकते हैं। नेक्स्ट, ये हमारे चैनल पे भी इनकी सारी पड़ी हुई है, आप हमारे 360 के चैनल पे भी जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट, सो these are the first verses जो कुरान पाक की पहली सूरत भी है, उसी से है बिस्मिल्लाह। आप सबको पता होना चाहिए, तो मैं इसको जस्ट स्किप कर रहा हूँ टाइम शॉर्टेज की वजह से। नेक्स्ट है ट्रांसलेशन, बस देखिए। Proclaim in the name of thy Lord and Chester, who created man out of clot of congealed blood. Then again, अलका का मीनिंग यहाँ पे यूज हुआ और उसके तीन मीनिंग है। ये एक्चुअली इंटरनेशनल ट्रांसलेशन है, इसके अगर हम मजीद ट्रांसलेशंस देखें उसमें आपको लीच लाइक सब्सटेंस भी मिल जाएगी। पीछे करें बल्कि बैक करें। जो इंटरनेशनल ट्रांसलेशन है उसके फुट नोट पे लीच लाइक सब्सटेंस फॉर एग्जांपल इसको क्या वो नोट कर सकते हैं। This is important here. अलकल इंसान